Students, today we will start our next topic, weak entity. An entity type that do not have attribute which may act as a primary key or key attribute is termed as a weak entity. So entity type that do not have attribute as a primary key, ਜਿਹਦਾ attribute कोई primary key नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਂਟਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਬਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਨੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਨੇਮ, ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਉਸ ਐਂਟਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਨ ER diagram for a database application, the relational representation of database model becomes relatively straightforward. रिप्रजेंटेशन होगी ना, तो हुण आपां नूं उहनूं डिज़ाइन करना डेटाबेस दे विच ईजी है। ईजी कन्वर्सेशन ऑफ ER टू डाटा मॉडल, उहनूं कन्वर्ट करना ईजी हैगा डाटा मॉडल दे विच। ते ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन जिहड़ा हैगा हमेशा ही बैटर अंडरस्टैंडिंग वास्ते मन्निया ही गया हैगा। नैचुरली इहदे विच ग्राफिक्स ते डायग्रामैटिक रिप्रजेंटेशन हैगी है। इहदी डिसएडवांटेज की हैगा, तो पॉपुलर फॉर हाई लैवल डिज़ाइनस, या बहुत ही हाई लैवल का डिज़ाइन बनाना हो तो आप ER मॉडल को प्रैफर करते हैं। नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर नोटेशन, तो ER मॉडल इज़ नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डिवेलपिंग ER मॉडल। कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है भी तुसी ER मॉडल इस तरह डिज़ाइन करोगे। अगे आ जाता जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो जेरे अपनी देयर आर टू मेन एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज़म्स यूज्ड टू मॉडल द इंफॉर्मेशन। एक होंदा जनरलाइजेशन तो एक है एग्रीगेशन। तो सब तो पहले आप कर लेने कि एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ सिंप्लीफिकेशन मैकेनिज़म यूज्ड टू हाइड डिटेल्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलाउ वन टू concentrate on the properties and that are of interest to the application। ਉਹ ऑब्जेक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲ ਦਾ, ਬਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਡਿਟੇਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੋਡਲ, ਕਪੈਸਿਟੀ, ਕਲਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਟਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ डिटेल्स भी वो मॉडल कैपेसिटी वगैरह वो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਹੀਕਲ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਜਿਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਕਿਹਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਮੋਡਲ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ process of viewing set of objects as a single aggregation by concentrating on the general characteristics of the constituent sets while suppressing or ignoring the differences. It is the union of number of lower level entities types for the purpose of producing the higher level entity type। जिमें in college there are two categories, employees teaching and non-teaching। Generalization between the teaching and non-teaching relationship, it's as a lecturer and clerk is an employee। the entity set ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ employee ਹੋ ਗਿਆ, is a generalization of the entity lecturer and clerk, ठीक है। तो employer हाई लेवल ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ सब लेवल ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, lecturer and clerk। तो द लेक्चर इज़ जनरलाइजेशन एंटिटी फुल टाइम एंड फिर वो तो अगे की होगा भी लेक्चरर फुल टाइम तो पार्ट टाइम हो सकता है, तो क्लर्क रेगुलर तो एडहॉक हो सकता है, ठीक है। हाँ देखो ये एग्जाम्पल जी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई जोड़ा है इज़
lecturer also, lecturer is an employee also, lecturer is also an employee and clerk is also an employee. Employee ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਟ ਆਫ अपॉइंटमेंट होएगा। एवें ही जो लैक्चरर है वो तीनों चीज़ा तो होणगियां ही होणगियां, नाल ओहदी ऐड होगी सैलरी और क्लर्क दे नाल ऐड हो गया भी वो किस टाइप का है। अगे जाके जो लैक्चरर है वो फुल टाइम भी हो सकता, पार्ट टाइम भी हो सकता, और क्लर्क रेगुलर भी हो सकता है, तो डॉक्टर भी हो सकता। हुण आपां कहने हैं अगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एज डिफाइंड सो फार इज अ रिलेशनशिप सेट इन इज एन एसोसिएशन between the entity set. Sometimes we have to model a relationship between a collection of entities, and relationships suppose that we have an entity called projects, and that each project entity is sponsored by one or more department. देखो पहला ਆਪਾਂ डायग्राम कर लेने हैगे आ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिपार्टमेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रोजेक्ट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ स्पॉन्सर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट आईडी होगा, कद स्टार्ट होया तो वह कितना बजट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट जोड़ा है वह आईडी, वह नाम तो वह बजट। तो एक उन्हें यह सारा जोड़ा लिंक्ड है वो किहदे नाल है भी ये सारा अलॉट होएगा एम्पलॉय है ना। तो एम्पलॉय नूं किहड़ा प्रोजेक्ट किहड़े डिपार्टमेंट का किहड़ा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया गया है। एम्पलॉय का आपका एक नंबर नेम तो वह अलॉट होएगा। तो ये डायग्राम आई होप तुसी समझ गए होंगे। तो ये नाल इहदी एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी है वो ये वाली हैगी है। द स्पॉन्सर्स रिलेशनशिप सेट कैप्चर दिस इंफॉर्मेशन। द डिपार्टमेंट दैट स्पॉन्सर्स द प्रोजेक्ट माइट असाइन एम्प्लॉयज़ टू मॉनिटर द स्पॉन्सरशिप। To define a relation set of monitors, we introduce a new concept ER model called aggregation. The aggregation allows us as to indicate that a relationship set participate in another relationship set. This is illustrated in this way. Okay, so this effectively shows us that to treat sponsor as an entity set for the purpose of defining the monitor relationship set. Now next is specialization. Specialization is the process of taking subsets of higher level entity set to form a lower level entity set. It is a process of defining a set of subclasses entities and which is called as a superclass of the specialization. हाँ जी, आ देखो इंप्लॉय जो है एक इंप्लॉय नंबर है, नेम है, वो पे होएगी तो आर्ली बेसिस ते होएगी उन्हें किन्ने आस्ते काम किया है। नाउ इंप्लॉय दा इज़ अ रिलेशनशिप की एक सैलरीड इंप्लॉयड है, एक आर्ली इंप्लॉयड है, ठीक है। तो ये विच इनू हुण किवें कीता जिहड़ा इहदे विच ये सारे हैगे है एट्रीब्यूट्स उहदे विच जिहड़ा हायर लेवल ते इंप्लॉय है उहदे विच उहनूं ER नंबर तो वह नेम जोड़ा कि हर इंप्लॉय का होगा वो हायर लैवल पर देता, यानी सुपर क्लास में देता। जी वो सब क्लास है दो तरह की होगी, क्योंकि सैलरी वाले नू बेसिक पे मिलेगी तो आर्ली बेस्ड इंप्लॉय नू आर्ली रेट पर मिलेगी। तो इसलिए सैलरीड इंप्लॉय दे विच आ दो एट्रीब्यूट्स तो आ ही गए, एम्प नंबर तो एम्प नेम ते नाल ओहदा हो गया बेसिक पे। आर्ली इंप्लॉयज़ ते आ गया इंप्लॉय नंबर, इंप्लॉय नेम ते आर्ली रेट। तो इसलिए ये नाल तुहाडा इज़ अ रिलेशनशिप सैटअप हो गया। डिफरेंस बिटवीन स्पैशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन ये तुसी खुद करियो, ठीक है। तो ईवन हाँ जो कन्वर्टिंग ER डायग्राम ये मैं तुहानू एक समझा देनी है, बाकी तुसी खुद करियो। आ देखो कस्टमर का है, एक कस्टमर की एंट्री बन गई, ये सारे की हो गए वो एट्रीब्यूट्स, उसका नेम, एड्रैस, फोन नंबर, सिटी। तो आह जो डायग्राम है इनू अगर तुसी टेबल च कन्वर्ट करना है तो ईजली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही कंपोजिट जिहड़ियां वैल्यूज़ होंदियां ने, देखो कस्टमर है, कस्टमर का अगर आप कहिए नेम है, एड्रैस अगे जाके हाउस नंबर तो लोकेलिटी ना बनता है, तो फोन नंबर हो गया, सिटी हो गया। तो ये अगे जाके एक होर बनाया है उन्होंने टेबल, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर ID तो पब्लिशर। ये देखो बुक नंबर जिहड़ा है ऑथर ID ले लिया, तो बुक नंबर ना बुक नेम तो पब्लिशर ये अड ले लिया। हुण इहदे नाल की है बुक नंबर
ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਚ ਕਰਕੇ DPMS ਤੇ ਇਧਰ ਕਲਿਆਣੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ A1 ਨੂੰ A2 ਨੂੰ ਤੇ A3 ਨੂੰ। ठीक है, ये तुसी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ER मॉडल ਨੂੰ अगर आप कन्वर्ट करिए टेबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ खुद करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे तो मैनू आके ज़रूर पूछो तुसी। ठीक है, ये तुसी सारा स्टडी करना हैगा। आगे की स्टडी है टीचर्स दी ID वगैरह है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी हैगा, तुसी रीड करियो। अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कम एनी टाइम इन द कॉलेज, तुसी मैनू पूछ सकते हो आके, नहीं तो तुसी मैनू व्हाट्सअप कर दो भी नहीं समझ आया तो वो वाला डायग्राम मैं तुहानू एक्सप्लेन कर दूँगी चाहे वीडियो के थ्रू ही। ओके बाय एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ ER डायग्राम।